I had a very cringe channel called 50 Shades of Gay. Because my surname is Ghelani, I said 50 Shades of Gay. It's a very poised version of me right now. Podcast has started. What? Yeah. Shreyas Iyer, the cricketer, bonded on Stay Plus. रोहित और मेरा सेम स्कूल सेम जगह से आते ना, तो हम लोग का वाइब मैच हो जाता है वहाँ से कि मतलब हाँ कैसा है वो, कैसे चल रहा है ना बराबर, हाँ ध्यान रखने का ऐसा लाइक ही इज वेरी बोरिंग. Like Hardik also has his own boundaries. He was giving an interview like हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, and then cut to me. भाईलू बराबर बोले ना, बराबर होता ना. मस्त था. Does your nanny have inputs ever? एक ही लाइन था कि ऐसा करना है. मुझे ना बोलते मैं नहीं करूँगी. मतलब क्यों नहीं करेगी? बोलते हैं कि मेरे को एक लाइन वाला डायलॉग नहीं चाहिए, मेरे को लंबा लंबा डायलॉग चाहिए. मतलब भाई एक ही डायलॉग है. नहीं मेरे को मैं करेगी नहीं. मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, इस एटीट्यूड का क्या कर सकते हैं. तो मेरे को लगा रोज का है सुशी, तो मेरा यही तो खाता हूँ मैं जापानीज तो हूँ, ऐसे ही तो रखता हूँ मैं. तो she called me saying, listen, this is the last time you've done this. I said, what happened? बोलता है, oh, okay, I'm sorry. Then I realized, oh, I'm married now. Yeah. And you have such a close connection जो वो गुज्जू culture के साथ. I was never proud of this thing. I recently started owning up to this. For middle class people, we fear happiness. मुझे डर लगता है कि आज गाड़ी ले लिया, आज मजा आया, कल क्या करेंगे, कल इसका EMI कैसे भरेंगे. तो जब मैंने पहली बार बोला कि मुझे जॉब छोड़ना है, पागल हो गए. आई वॉज अर्निंग 45,000 रुपीज एंड हमारे ओवरहेड्स ही 1 लाख थे. घर पे गेस्ट आएंगे तो क्या खिलाएंगे उतना पैसा भी नहीं था. माई मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड मी सेइंग कि यू विल गेट 2 लाख अ मंथ. दैट मंथ ओनली वी मेड. साल का पैसा 1 महीने में आ गया. जब भी पैसा कम था तभी मजा बहुत आ रहा था, पर अभी पैसा ज्यादा आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो अभी मजा कम हो गया लाइफ. धर्मा के ट्रेलर पे हियर फॉर विराट हो गया. अरे यार वो लफड़ा कितने फोन आए ऐसे टाइम पास में के कमेंट्स मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, जैसे जवान का हुआ था. सबसे ज्यादा मेरी मम्मी डर गई थी कि क्या शाहरुख खान को बोल के आया. प्रिविलेज से डर लगता है कि कोई प्रिविलेज बोलता है आया बड़ा स्टार. दैट्स व्हाट पलक टीचेस मी कि बोलते कि तू स्टार होगा तेरे काम पे, 20-25 लाख देगा तो मैं कर लेगा. मैं बिका हुआ है. गेट रेडी विद मी मतलब मेरे को भी तैयार होने का है. इन्फ्लुएंसर शुडंट बी एक्टर्स. મને આ કોન્વર્સેશન કરીને કરિશ્મા સાથે બહુ જ મજા આવી. It's either RCB or I really like Hyderabad as a team. Is this because Virat Kohli or okay. Basically. And SRH? That I genuinely like the team. Oh. I think it's a underdog team. This is the first time I've heard anyone liking SRH. Yeah, it's an underdog team, yaar. Matlab, and they're doing well. Yeah, They're wow. crazy. Yeah. This time they are doing very well. Last season also they did very well. It's just that they didn't cross the. No, because we did very poor last year, so I didn't consider only last year's IPL. Yeah. Plus, there is so much of resemblance for me to like Mumbai because Rohit is from Borivali, same school. Oh really? Yeah. Wow. So he's my senior. फिर Sachin and I same birth date. अच्छा. तो मेरे को वो liking है. Plus, you know, food and things and the way they play, it's very bold. सब अपने जैसे लोग हैं. I really like. This is very poised version of me right now. Very 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 poised and very nice. But मेरे अंदर से ऐसा नहीं हूँ. So, but we don't want this poised version. Don't worry, it will come out naturally. Yeah, so IPL though is a big, it's a thing. It's a festival. It's a festival. Yeah. It's like everybody at the evening is watching the game. Everybody. And it's just entertaining. तो बताओ शादी के बारे में बताओ. Podcast has started, by the way. What? Yeah. Oh, it started already. शादी कर रहे. I'm learning. Yeah. It's You happening. used to say ना कि 90% of marriages तो ऐसे ही होती है because parents want you to get married. Correct. That Why is did your true. marriage happen? Because एक ऐसा था कि मेरे नानी का ऐसा था कि शादी कर लो बस, मैं पता नहीं कब तक रहूँगी, शादी कर लो. मतलब ये क्या बात हुई शादी करने की. And because as a couple we were married only in our head. हाँ. क्या शादी तो हो, यही शादी है खाली. So this is why I never wanted a elaborated process कि मतलब ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंट्री मेरा यहाँ से होगा ना, फिर ये फ्लावर यही फेंकेंगे, यही सॉन्ग होगा. मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए था उस चीज़ में बिकॉज शादी हो चुका है मेरा. इट इज़ जस्ट बिकॉज पीपल एंड पेरेंट्स वांटेड. प्लस मेरी मम्मी क्या बोलती थी कि उसके शादी में खाया है ना तो वो करना पड़ेगा, उधर भी हम लोग गए थे तो करना पड़ेगा, लोगों को कैसा लगेगा शादी. फिर then we decided to have a court marriage, but just a family get together. पर उसमें भी गुजराती लोग का family get together तो it becomes like a festival in itself. Like we were as like कितने लोग रहेंगे, तो पहले तो लोगों ने बोला 25-25,
मैं बोला अच्छा हो अच्छा, फिर मैं स्ट्रेस में आ गया क्योंकि 25 तो मेरे फ्रेंड्स ही बन रहे खाली, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर 25 के ज़्यादा 25 के अभी प्रॉब्लम ये हो गया, आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट मैरिड इन माई ग्रुप। रियली सो बाकी सब फ्रेंड्स के भी +1s आ चुके हैं, वो 25-50 हो जाते हैं और मैं समझ रहा हूँ खाली क्योंकि इफ आई कॉल यू आई हैव टू कॉल योर हस्बैंड, आई हैव टू कॉल योर पार्टनर। ऐसे नहीं कह सकते कि हस्बैंड को छोड़ाओ। हाँ यू कांट से दैट बिकॉज दीज आर ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स। हाँ वो हो गया, प्लस इफ यू आर डेटिंग समवन आई हैव टू कॉल योर बॉयफ्रेंड ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें में मेरे 50 तो फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो 50 तो गेस्ट लिस्ट था मेरा खाली, 50 तो मेरे साइड से आ रहे, प्लस पलक इज ऑल्सो गेटिंग मैरिड, तो उसके भी फ्रेंड्स हैं। पलक इज गेटिंग मैरिड, थैंक यू, एक्नॉलेज तो हो गया Yeah, इसमें। सो पलक इज ऑल्सो गेटिंग मैरिड, तो उसके भी फ्रेंड्स है, उसके भी बहुत सारी चीज़ें है, उसके भी है कि मतलब यू नो ही वॉज देयर विथ मी व्हेन आई वाज डूइंग दिस एंड अच्छा उसको भी बुलाना, शी वॉज देयर विथ मी, उसको भी बुलाना है, सबको बुलाना, बिकॉज एवरीवन वाज देयर फॉर ईच अदर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो चल रहा है। सो we ended up in 200 to 50 people. At the court? So luckily I don't know luckily or unluckily because we had to pay a lot of money, but क्या हो गया कि we court marriage में ना you have to give some documents कि this is the document like you know आधार कार्ड and all this thing. वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट में भी लेके आना पड़ता है, लाइक ड्यूरिंग योर वेडिंग यू हैव टू गेट इट these things. वी रियलाइज्ड कि वो हम लोग पास है ही नहीं, क्योंकि दिया तो था पर अभी वो लंदन के वीज़ा के लिए चला गया है। पासपोर्ट दिए थे हम लोग ने पता नहीं किस शौक से, तो पासपोर्ट दिया था, पासपोर्ट तो लंदन वीज़ा में, तो बोला आपको नहीं, शादी नहीं हो सकती। बोला ये क्या बात हुई। तो वी आर ऑल वरीड एंड दिस इज हैपनिंग 12th वी गॉट मैरिड, दिस इज हैपनिंग 11th ऑफ December। बोला शादी कैसे नहीं हो सकती। देन वी फिगर आउट अ वे दैट देयर इज दिस option that magistrate also can come home and do a thing and all. This is why I love India. बेस्ट है, कोर्ट भी घर पे आ सकता है, तो और क्या चाहिए। जुगाड़ 101, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो we were like okay great. Hi guys, I hope you're enjoying the podcast, but I'm going to stop you here because I've noticed that so many of you watch our podcast but don't subscribe. So please pause this video here and go and hit that subscribe button because it really helps us grow, and with your support we want to bring you many more fantastic conversations. Thank you, and with that, let's get back to the podcast. So we were supposed to have court marriage in the morning and then रात को we were supposed to have the family get together thing. So 200-250 लोग के सामने ही कोर्ट मैरिज में शादी, लाइक कोर्ट के सामने ही शादी हो गया। We signed, but I've been waiting for this marriage since a very long time. Like I wanted to, you know, just put a name to our relationship in that way कि सबको पता चल जाए, because I wanted this girl very badly. Very, 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 very badly. Like, see, I will not deny that I was not dating other girls in the meantime. क्योंकि मुझे पता था कि ये out of league है। ये like imagine a Kandivali boy dreaming about like a girl like a Deepika Padukone. मुझे पता है नहीं होने वाला ये। Like you know, but still I'm trying my luck. So every week, every month, I used to message her, hey, you wanna go for a date? And she used to say no, and like move on. That's it. But you know, I was always like around her, trying to be her, you know, I was that best friend जिससे लोग डरते हैं कि ये भाई ये पटाखे लेके जाएगा तेरे को, मैं कहता था ऐसा। I was that best friend and I was not there for friendship, to be very honest. I just wanted to marry her. Bros and friends नहीं होना था। हाँ मुझे नहीं होना था, but I was trying my luck, and when she used to come and you know talk to me about her relationships and all, तो मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उसका कुछ। मेरे को तो एक ऐसा लग रहा था कि बस हाँ चल ठीक है, शादी कब करना है अपने को। Is that one day she fought with her ex-boyfriend and she was with me. I was working. She came to Dulali, जो अंधेरी में. So she came down. I said okay, I'll come down. And she's talking about this is 14th of February. Okay. And मेरे दिमाग में I'm still that old school कि 14th February को मिल रहा है मतलब तक गर्लफ्रेंड ही होगी और क्या चाहिए। I'm very like cringe kind of a guy in that way. तो शी इज टॉकिंग टू मी अबाउट हाउ इट्स ऑल मेस्ड अप एंड ऑल, एंड आई एम लाइक हाँ। उसी रात को मुझे लगा 14th को मिलना है तो मैं तो प्रपोज कर सकता हूँ, तो मैं रैंडमली, एंड आई डिडंट नो आस्क आउट इज डिफरेंट, प्रपोजिंग इज डिफरेंट। सो आई लाइक हाँ कई सारे लेबल्स होते हैं आज, बहुत सारे लोग, सिचुएशनशिप, वो तो अभी तो कुछ रैंडम ही चल रहा है, वो लोग का जनरेशन ही समझ में आता है। घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, बहुत फिर तो एक था बेंचिंग। बेंचिंग क्या होता है? सो बेसिकली बेंचिंग इज इफ आई लाइक यू, there are other 2-3 girls also who are on bench, like if for example you know like football क्या हाँ substitute type, if you say no चलो तुम आ जाओ अपन बात करते हैं, that's benching. I'm guessing this is right technically. Now I realize I was also benching other girls because ये तो नहीं बोल रही थी, but सब bench actually करते हैं, you know, because you always have कि ये जो 2-3 रहते हैं vicinity universe में कि
you know, अगर कुछ हो जाए Of course. with the primary, like हाँ. you'll be like, hi, what's up, you know. Yeah, of course, Yeah. everyone does it. Yeah. So it's like a comfort, you know, because as humans, I feel we always need a partner. Always, I feel 99% people needs a partner, and you find your own tribe here and there. And वो मुझे इसमें दिखता था बहुत ज़्यादा कि मुझे लगता था कि इसको दिख रहा क्यों नहीं, मेरे को तो दिख रहा है, इसको क्यों नहीं दिख रहा है. So I was just with a girl, we were supposed to go on a date, and then every time, like usual, I used to text her saying, hey, you want to go on a date to Palak, Palak my wife. तो उसको उसका सबको रिप्लाई, context पलक सबको पता है. नहीं मैं जिसको ना पता हो उसके लिए बता रहा हूँ मैं. तो उसने बोला या बट डोंट कॉल इट अ डेट. इसलिए या तो आया है, या तो आया एटलीस्ट, फिर फिगर आउट कर लेंगे. सो आई कुड, दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग, बट आई कुड सी द गर्ल जिसके बाद में जाने वाला था. आई कुड सी दैट गर्ल कमिंग. बोला अरे शिट, इसको ना बोलना पड़ेगा अभी. तो बोला लिसन, अर्जेंट घर पे कॉल आया, मेरे को भागना पड़ेगा. And I just like I had to leave because for me this was the World Cup for me. Like मेरी जो ये पलक है उसको तो मेरे लिए भाई ये जीत गया, मैं इसको और क्या चाहिए. But you met her first time गरबा पे. गरबा पे. हाँ, तो क्या इससे गुज्जू There's iconic गुज्जू thing. नहीं हो ही नहीं सकती. नहीं हो सकते. नहीं हो सकती. तो so how was it? During जो अभी शादी के वक्त भी ना जो ऑर्गेनाइजर्स है वो गरबा के, उसको भी बुलाया था मैंने बिकॉज आपकी वजह से तो आपकी वजह से हो रहा है. आपने अगर पैसे नहीं डाल के वो ग्राउंड नहीं खरीदा होता तो मेरे को नहीं मिलता शादी में. So I called him also, and she came. We were dancing, and I used to dance in her friends group. She never used to come. So एक बार वो आई, suddenly all boys, because that was Facebook era, all boys started sending friend request to her. And like ये क्या चल रहा है? And you know, I used to meet her गरबा to गरबा. So which year was this? This is 2012. This is like I don't know, 12 to 13 years back. Okay. It was very very like वहाँ पे था. And I started थोड़ा बहुत टाइम पास में स्नैपचैट वेबचैट, जब भी स्नैपचैट आया था तभी का बात है ये. हाँ. तो सब तो थोड़ा चल रहा था. And I had a very cringe channel called 50 Shades of Grey. Because तभी 50 Shades of Grey आया था और मेरे को लगा मैं तो बहुत quirky आदमी हूँ. Because my surname is Ghelani. I said 50 Shades of Grey. GHE. And I used to tell her, you know, you should follow me on 50 Shades of K and all. She's like, what? Like, yeah, this is my channel. Oh, वो शादी का बताया कि तू बहुत cringe था भाई. मतलब हाँ, thank you. But I never sent her friend request on Facebook. I said नहीं मैं नहीं करूँगा. मतलब सब करे तो क्यों करे? उसको करना चाहिए, मैं क्यों करूँ, ऐसा था मेरा. तो kept on meeting गरबा टू गरबा. एक बार क्या हो गया, see, I used to be a very कांदिवली बोरिवली में ना सब अपने भाई लोग के अंदर रहते हैं. सब लोग ऐसे कैसे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज स्टिल आई एम यू नो अनकवरिंग माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इट, बट आई एम वेरी पॉइज्ड राइट नाउ. बट कांदिवली में ऐसा सब लोग, किसी भाई का फोन आया ना अपने फ्रेंड लोग का, भाई मतलब फ्रेंड ना, ऐसा नहीं भाई फ्रेंड का भाई मतलब वो भाई नहीं हाँ. पर उधर के हम लोग सब भाई ऐसा. जैसे कि भाई नीचे उतर तो उतर जाने का, कुछ भी हो जाए, ठीक है. वी हैड दिस कोड, भाई की जरूरत है, फिर कम व्हाट मे यू हैव टू गो डाउन, व्हाटएवर you are doing in your life. You have to go down and meet and sort out the situation. Like रिक्शा वाले का कुछ दफड़ा हो गया, कि कोई गाड़ी वाले का लफड़ा हो गया, कुछ भी हुआ ना, this is what we do. We used to do. Okay. So I have a very close friend called Karan Shah. ठीक है. करण का very random, very wrong. करण ने अपने खिड़की से टिश्यू पेपर बाहर फेंक दिया. This is old stories. Okay. And पीछे की गाड़ी में कोई और था, वो उसको गाली गलौज कर रहा है कि भाई गलत है ये सब. करण ने गाड़ी रोका, रात को 2 बज रहे. करण ने गाड़ी रोका साइड पे, बोलता है कि भाई तू कौन है, तू कौन है. बोला रुक मेरे भाई लोग को बुला दे. ही कॉल्स मी अप रात को 2-2:30 बजे. आई टेक आउट माई एक्टिवा एंड गो टू फाइंड दिस गाय कि कहाँ चल रहा है. मतलब उतर बाहर कौन है, मेरे भाई को टच कैसे किया, ऐसा सब चल रहा है मेरा. एंड देन कट टू वो पीछे की गाड़ी में, पीछे के दरवाजे से पलक बाहर निकलती है. मैं बोला अरे शिट, ये तो अभी मतलब. देन आई टर्न टू करण सेइंग तेरा गलती है. तेरे को समझ में ना, कचरा स्वच्छ भारत अभियान नहीं है इधर. करो का. तो ही सेड सॉरी टू दीस गाइस एंड पलक दैट्स एक्चुअली योर फ्रेंड इज सो नेस्टी एंड ऑल, व्हाट इज दिस, ही इज टॉकिंग सो मच एंड ऑल दिस. बोला हां आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी, यू गो ऐसा करके उसको. फिर करण ने क्या कहा आपको? करण क्या बोलेगा, सी वी अंडरस्टैंड ईच अदर कि ये तो करना ही है. मैं वो भी वही करता, मैं भी वही करता, ऐसे ही लगे देख लेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे करके. मतलब जाने देना, भाई के लिए करते हो गया. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड देन वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन. तो ये जो ब्रो जोन फ्रेंड जोन वाइब था, जो विच इज वंस इन अ ईयर, जैसे ब्लू मून आता है, गरबा पे मिलेंगे,
टू डेटिंग कितने साल लग गए? So I asked her out 3 times हाँ. over the course of 13 years, 12 years, and it was rejected 2 times. And for 2019, on 2nd of November, I asked her out properly. That I don't want to be friends and all with you. मेरे को नहीं आता है. And it took me like मैं full set jacket पहन के गया था. I've never tasted sushi in my life. See, I come from कांदिवली. मेरे लिए खांडवी ढोकला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सुशी वुशी मेरे को नहीं जमता है. तो मेरे लिए कभी नहीं था. और मैं उसके 2-3 फ्रेंड्स भी थे वो टाइम पे वहाँ पर. तो उस सबको लगना चाहिए ना कि हाँ ये जो बंदा है पलक ने जो चूज कर रही है वो वर्थ इट होना चाहिए. तो मेरे को लगा रोज का है सुशी तो मेरा यही तो खाता हूँ मैं जापानीज तो हूँ वैसे ही तो रखता हूँ मैं. तो फिर मैं ऐसा वो चॉपस्टिक्स आता नहीं मेरे को यूज़ करने को. मैं चॉपस्टिक्स ऐसा कूल बन रहा हूँ सब गिर रहा है सोया सॉस गिर रहा है यहाँ पे हर जगह पे. फिर मेरे को पता नहीं वसाबी चटनी क्या होता है. वसाबी सॉस आई हैड नो आइडिया व्हाट इज वसाबी. आई लगा रहे चटनी तो है. खा लिया पूरा खत्म हो गया मैं. डेथ था मेरा उस टाइम पे. स्टिल एक्टिव बिकॉज सी देयर पलक एंड फ्रेंड्स ऑफ कोर्स वसाबी भाई तीखा यार. गुजराती लोग तीखा खा रहे कैसा चलेगा. सी देन वी आई वाज शूटिंग अ वीडियो. फिर वहाँ से मैं तुरंत आया था. फिर उसके बाद मैंने बोला आई नेवर बुक्ड अ रेस्टोरेंट फॉर अस बिकॉज आई थॉट वो कभी भी ना बोल सकती है बिकॉज उसने किया हुआ है सब पहले. बेरूट में आई नेवर बुक्ड अ टेबल एंड शी इज फाइटिंग विद द रिसेप्शनिस्ट देयर के टेबल अंडर नेम ऑफ विराज ऐसा कर रही हो. मैं बोला नहीं है भाई टेबल ही नहीं है मेरे पास तो. एंड देन शी इज लाइक अरे होगा देखो चेक करो. एंड देन शी वेंट टू वॉशरूम सेइंग विराज प्लीज फिगर दिस आउट. आई सेड ओके. बोला मैडम प्लीज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ये. मैं शायद उसको प्रपोज करने वाला है उसको मेरे को उसने बोला वहाँ टेबल चलेगा. बोला जिधर बिठाओ चटाई लगाएगा मैं बैठेगा मेरे को बिठाओ. एंड देन शी लाइक ठीक है बैठ जाओ उधर. एंड देन थोड़ा फिल्टर कॉपी थोड़ा चल रहा था मेरे लाइफ में तभी. तो पीपल स्टार्टेड नोइंग मी थोड़ा ओके. So 2019 okay. 2nd November. हाँ. 1st November उसका बर्थडे तो 2nd wow. November. तो मैं फिर वहाँ पे ना एक बुक लेके आता है कोई आदमी सेइंग सर आप योर फीचर्स बिग फैन ऑफ यू एंड ऑल. सो बोला ऑफ कोर्स यू नो एक्टिंग कूल. एंड आई देयर इज दिस पेज वहाँ पे लिखा सचिन तेंदुलकर साइन करके लिखा कि गुड रेस्टोरेंट ऐसा करके. देन आई टर्न द पेज शिल्पा शेट्टी गुड पेज एंड देन इट्स माय नेम. आई सेड ग्रेट लाइफ सही चल रहा है मेरा. तो एंड देन यू नो शिल्पा शेट्टी है सचिन उसको बता रहा हूँ मैं हीरोगिरी मार रहा हूँ. एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हर सेइंग लिसन ऐसा है कि आई एंड इट टुक मी 1.5 hours. बीच में वेट रहा था सर एनी ऑर्डर्स. मतलब चुप रहे थोड़ा 2 मिनट बात कर रहे हैं हम लोग. फिर कुछ भी होता है एक्सीलेंट चॉइस करके निकल जाता है वो. फिर आई एम ट्राइंग उसके भाई का फ़ोन आ रहा है उसके पापा का फ़ोन आ रहा है सब कुछ चले जा रहा है. एंड देन after a lot of time I gathered my courage and I said listen I don't want to be friends with you. And all this while she knew मैं एक तो लड़की लोग को पता चल जाता है 100%. you because मैं जैकेट पहन के आया मैं ब्लेजर पहन के आया फुल सूट में आया मैं. तो मैं उसको बोला लिसन तेरे को समझ रहा है. बोलता नहीं क्या बोल रहा है तू. बोला सुन तेरे को समझ में आ रहा है. बोलता नहीं बराबर से बोल. बोला मेरे से नहीं होएगा. उसने एंड आफ्टर ऑल दिस शी सेज ओके आई न्यू दिस. बोला तू कैसी लड़की है यार. बिकॉज सी we've never had this romantic relation. We were always friends. Like we'll be like चलना बैठना ये करना ऐसा तो friends है. बोला तू क्या लड़की है यार तू बोलना I love you too भी बोल तू. बोलता I love you. बोला I love you too बोल. बोला नहीं I love you too नहीं बोलती मैं. बोला यार ये क्या लफड़ा है इसका. So and I कहीं ना कहीं से मुझे मालूम पड़ा नार्स करके एक ब्रांड होता है मेकअप. हाँ which I had no idea. I thought मेकअप में क्या लैक्मे मेबेलिन 2-3 चीज़ें होती रहती है. बट नार्स तो मुझे आइडिया दूर तक आइडिया नहीं मेरे को. एंड वो इंडिया में नहीं अभी मिल रहा है पहले नहीं मिलता था इंडिया में. एंड आई डिडंट नो कि इतना बड़ा चीज़ होता है नार्स. तो मैंने मेरे सब बोला किधर से तो मेरे को नार्स देना ही पड़ेगा इसको. सो आई फिगर्ड आउट कहाँ से नार्स दूँ इसको मैं. मेरे फ्रेंड जो पायलट था उसको मैंने बोला उसको नहीं है. फिर 2-3 लोग US से आ रहे थे बोला लेके आओ कोई नहीं आ रहा था. जस्ट रैंडमली पोस्टेड अप सो मेरा ना फोटो डाला पर वो भी कुछ काम नहीं किया इंस्टाग्राम पे. लेटर रियलाइज आशीष चंचलानी सिस्टर मुस्कान चंचलानी शी इज इनटू मेकअप. सो जो पर्टिकुलर शेड था वो उसको बहुत पसंद था और वो पर्टिकुलर शेड सिर्फ मुस्कान के पास था. एंड मैंने यहाँ वहाँ से स्काउट किया. मतलब मुस्कान कुछ भी करके मुझे ये दे दे मेरे लिए बहुत ऐसा मर जाएगा मैं मेरे को चाहिए वाला. और वो शेड उसके पास जस्ट उसने लिया था नया बिकॉज यू नो फॉर
in general for makeup influencer in general, for her makeup was very big thing, and वही particular shade जो किधर भी नहीं मिलता है वो उसके पास था. अभी उसको वहाँ पे सोर्स करना पड़ा कैसे. So she was very sweet, she gave it to me. So like ले करके मतलब कितना वाला नहीं तू ले let it be. I said great dude. तो उसने दिया, and then after she said yes to me, I said I've got a gift for you. This is the gift, and she was very excited. And that's how it started. So after 2-3 days when we were sitting, उसका हाथ ऐसे आता है, and she started playing with my hair. Okay, I was like अब मैं अब डेट कर रहा हूँ पलक की मौत को यार. So for me that was the moment. That was the moment. That was the moment. कि now I'm dating the girl which I always wanted to date. Establish हो गया कि अब हम actually dating कर रहे हैं. हाँ, तभी मेरे को बहुत फील आया. मेरे को ये है, ये प्यार होता है ऐसा. And how has it changed after शादी? Goals I was just telling Anant outside. Okay, today I felt like a married couple. He said why? I was like, अरे यार तो पहले गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी ये. बहुत अच्छी थी. सडनली सब दिमाग वाले बातें करने लगे मेरे साथ यार. ये मतलब she is very family oriented. She knows her shit. She knows everything, and I am still there where I was. वो इवॉल्व होने जा रही है हर चीज में यार. तो सी मेरा यूजुअल डे कैसा होता है कि आई वेक अप, आई गो फॉर माई स्पोर्ट्स और जिम एंड ऑल, आई कम बैक, मीटिंग्स, एंड देन आई लीव, और आई लीव एंड देन मीटिंग्स, वॉट एवर. सो वही मैंने किया. अभी 2 दिन पहले मैं उठा, जिम गया, बैडमिंटन खेला, रिटर्न आया, नहाया, सीधा मीटिंग के लिए चला गया. शी कॉल्स मी सेइंग लिसन, दिस इज द लास्ट टाइम यू डन दिस. आई सेड व्हाट हैपेंड? बोलता है देयर इज अ फैमिली ऑल्सो इन द हाउस, यू हैव टू टॉक टू फैमिली, यू हैव टू टॉक टू मी, यू हैव टू टॉक टू पीपल अराउंड यू. दिस इज नॉट योर होटल लॉज, you have to be there. I said, okay, I'm sorry. Then I realized, oh, I'm married now. Today is the day I got married. So anniversary मैंने कल celebrate किया. मेरा एक दिन कल है. So it's just, but it's beautiful. And what about fights? We don't fight. You don't fight? Well, we fight, but we don't like fight for like 4-5 दिन बात नहीं करेंगे. It's just basic fights. Like you fight for 1 hour, 2 hours time. Yeah. It's just like because of understanding इतना है ना, तो उसको पता है मैं कैसा हूँ, मेरे को पता है वो कैसा है. It is just basic level fight about ये ऐसा मत करना, ये करना. Just as simple as that. There's not much major fight, but fights in terms of because she's a Superman fan of me. You know, she really wants me to succeed in terms of what I do, what I wear, फॉर एग्जाम्पल ये जो पहन के उसके अप्रूव्ड कपड़े, वरना मैं इधर अलाउड नहीं था. मैं इफ़ यू सी रैंडम इंटरव्यूज ऑफ मेरे पास्ट के, मैं कुछ भी पहन के निकल जाता था. आई वॉज नेवर बियर्ड ट्रिम नहीं, बाल काट के नहीं आने का, ऐसे ही नाखून काटने नहीं आने का. मैं मैं ऐसे ही जीता हूँ ना. स्टिल शी लाइक्ड मी, आई डोंट नो हाउ, बट आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज कि हैंड क्रीम लगा के जाना चाहिए. सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट, माई बेस्ट फ्रेंड इज सनस्क्रीन. ये सब ऑल दिस चीज़ें मेरे को सिखाई गई. आई वॉज ग्रूम्ड एज अ मैन. सो आई रियली लाइक इट. द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट मैरिज मेरे लिए अभी फिलहाल वो है कि we were 2 boys and 1 mom and 1 nanny staying in because my brother and we never had the emotion quotient in life. Okay, because when mom comes to us and talks to us about her life and her things, मेजरली हम लोग को समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रही, क्योंकि समझ में नहीं आता ना. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ शी लाइक्स अ ड्रेस, इफ शी लाइक्स, वी हैड नो आइडिया अबाउट फैशन. बॉयज़ को कैसा इतना मेरे को नॉलेज नहीं था इतना. बट नाउ पलक कम्स, देयर इज द डायनामिक शिफ्ट अबाउट हाउस कि लोग बातें कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं. रैंडमली पलक one day wakes up and says today we'll just paint. So we are painting घर पे, random चीज़ें कर रहे हैं. And it's just beautiful to see this emotion side of our family coming out. And that this girl brings out. Which was like the amazing feeling. Like I can see my nanny painting some random parrots and all. जिसको समझ में नहीं, पेन पकड़ने नहीं आ रहा बराबर से, वो पैरेट ड्रॉ कर रही है. My mom is drawing something, she's drawing something, my brother is drawing something. तो वो चल रहा है. एवरी डे देयर समथिंग न्यू कुकिंग कॉम्पिटिशन गोइंग घर पे कि मेरी मम्मी ने ये बनाया, पलक ने ये बनाया, मैंने ये बनाया, जराद ने ये बनाया. तो ये सब चीज़ें चल रही जरी कुछ ना कुछ. एंड आई वॉज वरीड के हाउ विल माई मॉम विल बी लाइक अ मदर इन लॉ. बट apparently everyone, my Palak's like my mom more than me. I feel like ये क्या चल रहा है ये, because it's just beautiful, because they have friends, because they are all scorpions. In my life सब लोग scorpions हैं. The ladies in my life are all scorpions. Wow. Everyone. So my mom 4th November, Palak 1st November, my nanny 15th November, my mother-in-law 20th November. So all important ladies, my sisters and all, everything's November. Everyone's scorpion. I'm the bullier, getting bullied every time. Good, man. It's good. I love it. It's the beautiful phase of my life. I love it. Yeah. And you have such a
क्लोज कनेक्शन जो वो गुज्जू कल्चर के साथ टिपिकल कहते हैं, इवन योर कंटेंट, व्हिच इज व्हाई आई थिंक लोग इतना रिलेट कर पाते हैं, राइट? बिकॉज इट्स जस्ट सो रियल. But you know, I was never proud of this thing. I recently started owning up to this, like in this 5 years or 4 years of my time, because I was like, मुझे इंग्लिश नहीं आता बराबर से, मुझे गुजराती लोग बोलते, मुझे बोलते थेपला खाता होगा and all this. I was always embarrassed about me being a Gujarati. After when I started owning up to it and I started making a video about it, and I realized everyone relates to the same thing. Like for example, it's not a huge thing if you don't know English, you know how to talk in English and all. But then I later realized that मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ ना कैसे होता है. Then I realized अरे भाई हमको भी नहीं आता है, and started becoming like the, you know, वो होता है ना कि एक ग्रुप है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और उसको लोग गाली दे रहे थे, और वहाँ पे मैं आके ओन कर रहा हूँ उस चीज़ों को, एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू मी सेइंग हाँ भाई तू हम लोग के जैसा है, you are relatable factor. You know, when you see actors or someone abusing randomly on screen or somewhere, you feel like गाली दिया इसने यार. You know, suddenly सलमान खान गाली दिया इसने, you feel like relatable कि human है. ये मेरे जैसा ही है. Exactly. You know, when you see your teachers randomly buying vegetables, you feel like अरे ये खरीद सकते हैं ये हो सकता है. It's very weird to see your teachers randomly in your food market and all this thing, you know. So वैसा ये I struggle with a lot. So I'm very like, this is who I am. लेकिन you know, I just feel the internet is a double-edged sword. Yeah, but see, the thing is, if you, this is what I've learned. If you give them what they want, with a very nice way, I think no hate will come. No hate. Because see, for example, very stupid example, but you know, Alia Bhatt was trolled for her GK and all these things. Yeah. And she made a video with AIB, yeah, and everyone started loving it. Like she owned it. She owned it. Yeah. So I started owning, and thanks to Dhruv Sehgal, who's my very dear friend, he told me that ki be yourself, own up to this shit, and you become your own Viraj. I said, okay, great, I'll try. And that's how people started knowing me as a Gujarati creator, you know, ki jisko Gujarati mein aata hai aur wo kar raha hai. And now people come to me saying, you are taking the Gujarati thing ahead, you are doing this with us and all this. I said, okay, I'm just doing my job. You're just doing, also being you. I'm just being myself. Yeah. This is why I don't see when someone calls me funny, I feel कि मैं funny नहीं है. मैं अपने घर पे जो हो रहा है वो ऑब्जर्व करके उसको वीडियो में डाल रहा हूँ. लिटरली मैं कुछ चेंज नहीं करता उसके अंदर. मैं सिर्फ अपने वीडियो घर पे देखता हूँ झगड़े हो रहे, वीडियो में डाल देता हूँ. घर पे देखता हूँ ये हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आफ्टर गेटिंग मैरिड पलक को सब जगह पे लिफाफा मिल रहा है. लाइक पलक अलग के, अरे पहला पूजा किया आपने, आप लिफाफा ले लो. अरे आपने पहली बार ये किया, पैसा ले लो. पहली बार आपने खाना बनाया, वाह वाह वाह. मैं बोला मेरा भी तो शादी हुआ है, मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा है, सब लोग पलक को पैसे दे जा रहे हैं. तो मैंने ये तो वीडियो है, तो वीडियो बना दिया, तो चल गया. बेसिक only basic, but no one does basic shit because this is why it's so relatable. Yeah, when you start putting your brains into your passion, it always because you started as a thing that चल ना try करके देखते हैं, so you always have to try it out. You should never be like अरे इसको ऐसा करते. Like I don't want Oscars from my reels and all YouTube videos. I just want people to like me. That's it. I'm a big people pleaser. मेरे को अच्छा लगता है कि रूम में सबका एनर्जी सब मेरे लिए सेम होना चाहिए. अगर इफ आई फील दैट यू डोंट लाइक मी फॉर एग्जांपल, आई विल लाइक आई मेक श्योर यू लाइक मी. मैं कर दूंगा. हाँ, अगर यू लाइक फुटबॉल, आई स्टार्ट वाचिंग फुटबॉल एंड टॉक टू यू फॉर फुटबॉल. आई विल मेक श्योर यू लाइक मी. कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा हूँ. गुजराती के बारे में इतने सारे स्टीरियोटाइप होते हैं, राइट? इवन यू सेड लाइक थेपला खाता है. इवन विद मी, लाइक इवन आई एम गुजराती, थेपला, ढोकला, खांडवी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. व्हाट इज द वन स्टीरियोटाइप जो आपको लगता है कि ये तो गलत ही है, गुजराती ऐसे है ही नहीं? मीठा खाना. हाँ. लाइक सी मेरे घर पे आई डोंट थिंक कुछ मीठा बनता है, बिकॉज कुछ पीपल think Gujarat is Ahmedabad. That's what people think. Yeah. But there are so much difference. So when I did this film, I realized what we speak in Mumbai, that is not at all Gujarati. There is a mixture of all Marathi, Hindi, and this thing. It's mixed. Everything is mixed. Like for example, there's this term called "Hu sochi ne bolis." There's this thing. Think and tell. But there's not soch Hindi word hai. In Gujarati mein it's called "Hu vichari ne bolis." That's the thing. Like you know, people don't know all these things. Yeah. Like maybe people might know, but इतना कुछ. But you got used to इतना हो गया. हाँ, because see I am, मेरे साथ friends है, we are Cosmo, everyone lives here and there, सब same languages, सब कुछ same खाना, सब कुछ same. But broader language पे people think Ahmedabad is Gujarat, but Ahmedabad के ऊपर भी है, सौराष्ट्र है, there's Kathiawadi, there's so much in Gujarat. तो वहाँ I belong from Kathiawad, okay. तो जैसे पोरबंदर, राजकोट, all these places.
So वहाँ का खाना if you eat, it's spicy as hell. It is very spicy. It's very spicy, yeah. Yeah, so I don't think वो है एक, that is the thing which I don't think stereotype ज़्यादा गलत ही है वो, मतलब बाकी थिपला तो आए वो अभी eat और क्या, and that's the सब लोग beauty. खाते हैं by the way, non Gujaratis also, जब Exactly. फ्लाइट में बैठते थेपला होता ही है. Exactly. Dude, Shreyas Iyer, the cricketer, we were in West Indies and I had like tons of thepla with me because मैं और क्या कुछ वेजिटेरियन कुछ मिला नहीं वाला, वेस्ट इंडीज में क्या खाना खाने मिलेगा, तो मेरा कुत्ते लेके जाएगा. एंड श्रेयस एंड आई बॉन्डेड ऑन थेपलास. Oh yeah. कि उसने बोला भाई 2 पैकेज रख के जा, मेरे को खाना चाहिए ये वाला, मेरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हेनेवर वी मीट वी बॉन्ड ऑन थेपलास एंड ऑल. सो दैट्स, एंड वी एज कम्युनिटी वी लव फीडिंग पीपल. कि कोई भी भूखा पेट नहीं जाना चाहिए. Correct. अपने घर पे आओ कि अपने जगह पे जाओ, कोई भी भूखा पेट नहीं जाना है. हर बार कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. मेरे गाड़ी में भी अभी भी पाइनएप्पल का डब्बा लेके घूम रहा हूँ मैं, कि कुछ तो होना चाहिए खाने में, कुछ भी ना हो. सो दैट्स द थिंग एंड दैट्स हाउ वी ईट. What's one Gujarati habit जो लोग समझ नहीं पाते but you can't do without? लोग समझ नहीं पाते. Yeah, like they don't understand it, they don't know why you're doing it, क्यों कर रहे हो? I think we are loud. Yeah. Yeah. In my head I'm not loud, but people think we are loud because we just we are expressive. As a community, I think we all are very expressive and we like to happy show, and very like, happy. yeah. We don't give a damn about, and the good part is that if you make fun of Gujaratis, they like it. They feel like दो joke और ले और मार, because it's just beautiful. कि I love this community यार, कितने इतना simple है, कुछ नहीं करने का, पैसा भी है, Sweet people. हाँ, पैसा भी है, खाना भी खिलाते हैं, सब कुछ है. What's your mummy's one next level Guju Jugaad? Next level Gujju Jugaad. I think she can bargain very well. हाँ. Yeah, and the superpower she has is she thinks everyone's Gujarati. My mom and my nani, she thinks everyone's Gujarati. So They घर start पे talking in Gujarati. we start talking Gujarati. I said mom इसको, for example there's you know जो garbage लेने आते हैं and watchmen and all these people who are evidently not Gujarati. Okay, who I know, you know, Gujarati नहीं है. For any delivery boys or anyone, until unless they are Gujarati, it's fine. But ये तो मैं बोल रहा हूँ इसको नहीं आ रहा है. बोला सब समझ में आता है इसको. अरे नहीं आ रहा है उसको समझ में. But surprisingly he knows. It's just weird. Have you been to Rajkot by any chance? No. Rajkot में it is so weird that they are always in Damsharas. Because they eat so much of tobacco and all these things. They talk बात करते हैं, you know, 80% of the people there. And I feel like मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, पर सामने वाले को समझ में आ रहा है वो क्या बात कर रहा है. It was so weird. Yeah. So ऐसे ही मुझे लगता है कि गुजराती लोग को लगता है सब गुजराती है, पर ऐसा नहीं है. गुजराती मारवाड़ी कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है. तो how is it being married? जैसे गुजराती मारवाड़ी. They're very good, very progressive, very nice. But होता है ना कि बिजनेस कहीं ना कहीं से पैसा तो जुगाड़ना ही है. So my mom had this thinking कि because we've come from a very terrible time of financial crisis and all, very 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 bad, like so we don't want to go back to that life. So my mom has this thing that कि if you save money will come to you. Okay, cut to Palak, because business नफा धंधा सब पूरे सब कहाँ से आते हैं. Palak says if you spend money will come to you. Then I'm in the mix of these two personalities. So which way do you go? I keep quiet. I spoke to my friends जिसका शादी हो चुका है कि जब भी मम्मी और पलक का झगड़ा तो किसका साइड लेना चाहिए. बोला चुप रहना चाहिए. मैं चुप रहता हूँ. जब भी ये लोग झगड़ा करते हैं बोला करो, पर ऐसा उतना कुछ ज़्यादा मेजर हुआ नहीं है. So अभी तक it's just very initial nascent stage of my life. So इतना कुछ नहीं हुआ है, like आगे जाके होगा. Because see, it is important to have these, you know, arguments and discussions in the first times, and it will happen because पलक का लाइफ पूरा डिफरेंट था, मेरा लाइफ डिफरेंट है, मम्मी का लाइफ डिफरेंट है. Also you may be married in your head कि मेरी शादी तो हो चुकी है, but when you live together, it's very different. Because see, it's not their fault also, no, because see, as much as she tries to be आजकल के लोग के जैसा, you can't try to explain someone, for my nanny, you can't try to explain a 80-year experience. 86, you can't tell them कि ये ऐसे होता है. हाँ. Like see, I don't drink, I don't smoke, I've never tried in my life. Wow. But Palak does. Palak के family में भी everyone does, and she's not like a drinker कि रोज दारू पीना पड़ेगा नहीं. वो उसके family के साथ ही रहती है, उसके friends जो भी है उसके घर पे भी करते हैं, everyone knows. But to tell and to explain this to my nani, it's not about girl drinking, it's about people drinking only in general.
तो कि ऐसा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। कॉन्सेप्ट ही समझ के दारू क्यों पीना है, हाँ मतलब ये तो शी डजंट अंडरस्टैंड कि सोशल ड्रिंकिंग होता है, इट्स इंपॉर्टेंट यू नो बिकॉज यू जैम ऑन थिंग्स एंड ऑल, यू नो हाउ पीपल ड्रिंक टी, इट्स लाइक यू नो नॉर्मल एक दो ड्रिंक हो गया करते, बट वो लोग को समझ नहीं आता कि आजकल का कल्चर क्या है. लाइक शॉपिंग वाइज ऑल्सो इफ आई गेट लॉट ऑफ पार्सल्स एंड ऑल, शी विल लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस हाउस, ये क्या है. 1500 रुपये का लाइट बिल भी आ गया ना, घर पे प्रॉब्लम हो जाता है कि गवर्नमेंट को क्यों देने का है. You can't explain this, you can't you know teach these things to an 86-year-old experience. You have to just say हाँ ठीक है ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे. That's how it's happening. So तो पहली बार जब मैं बताया था कैसा वाला तो लगा कि अरे बाप रे अपना घर दारू पीसे है. बोला नहीं घर पे नहीं होएगा, that's the rule and boundaries of our house. उसके घर पे अलग था, but you can't be like कि वो लड़की ही खराब है. So I had to make them sit them down, talk to them, and there are so many things which I had to sit them down and talk to them when Palak was not around कि ऐसा होता है, ऐसा है आजकल के ऐसे, if you want her to also accept you the way you are accepting her, तो वो सारी चीज़ें आपको सिनर्जी में लानी पड़ेगी. आपको अकेला नहीं कि मतलब ऐसा है तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू, बिकॉज देन शी विल बिकम योर फ्रेंड, देन यू विल बिकम हर फ्रेंड. तो दोस्ती यारी वे होना चाहिए, वरना तो फिर ऐसा नहीं होता. अगर मैं भी लेट तक उठ रहा हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट कि पलक भी सुबह जल्दी उठ के काम करें. सब लोग अपने हिसाब से उठेंगे, एवरीवन फील्स दिस, इस कब का घर है ऐसा घर है, सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे. तो वैसे ही चल रहा है. देयर इज नथिंग एज ऑफ नाउ पलक भी कि तेरी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज पहले से डिस्कशन हो चुका है. करेक्ट. You know, you were saying कि you've been through a very difficult financial time. Obviously when you started creating content, और ये जो content creation की industry है, काफ़ी सारे लोगों को अभी तक they don't understand it. क्या क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो. When you started, were there people in your family, extended circle, जिसने कहा कि ये सब क्या कर रहे हो? My parents, because as I told you, ये बहुत अनकन्वेंशनल है फॉर अ गुजराती गाय टू डू दिस थिंग्स, यू नो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि कोई डिग्री ले लेगा, पैसा कमाएगा, घर पे फिक्स जॉब होगी. फॉर मिडिल क्लास पीपल अ फिक्स जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली नेसेसरी. क्योंकि ये जैसे बिकॉज वी फियर हैप्पीनेस, मुझे डर लगता है कि आज है, आज गाड़ी ले लिया, आज मज़ा आया, कल क्या करेंगे, कल इसका EMI कैसे भरेंगे. डर लगता है चीज़ों से, कुछ करने से डर लगता है, क्योंकि सेट है ना सब कुछ, क्योंकि बिगाड़ना है. तो जब मैंने पहली बार बोला कि मुझे जॉब छोड़ना है और मुझे खुद का कुछ करना है, तो मतलब पागल हो गया. आई वॉज अर्निंग 45,000 रुपीज़ एंड हमारे ओवर हेड्स ही 1 लाख थे, और इतना ख़राब था. और वो तो छोड़ो, जब हम लोग के पास पैसे नहीं थे तो घर पे गेस्ट आएंगे तो क्या खिलाएंगे, उतना पैसा भी नहीं था. When I used to go for my school picnics and all, my mom used to ask money and you know कि 250 रुपये दे दो उसको पिकनिक में जाने का. इतना ख़राब दिन था. And my mom also from Sobo only, you know, Worli side and all this. मैं ऐसा then she directly from Worli she came down to Lohar Chal. I don't know if you know this thing place, एक टाउन में लोहार चौल करके जगह है, वहाँ पे इतना ही घर था उनका, इससे भी कम रहेगा. उधर वो लोग 4-5 लोग रहते थे. इतना ख़राब टाइम. और वहाँ से नानी ने काम कर करके, मेहनत कर करके हम मम्मी को पैसा दिया एंड सब कुछ चालू था वहाँ पे. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लीव दीज थिंग्स. जैसे आई वॉन्टेड मनी कम वॉट में जस्ट फॉर माई मॉम, कि उनका लाइफ सेट हो. मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं, ना मटीरियलिस्टिक ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को यही चाहिए गाड़ी. मेरे सपने ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, कोई ड्रीम्स नहीं है. इफ़ यू टेल मी व्हाट आर योर ड्रीम, वेयर इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन, आई डोंट गिव अ फक अबाउट ड्रीम डेस्टिनेशन. आई वांट माय मनी, दैट्स इट. मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ जाके ये करने का है, मेरे को स्की करने का है, मेरे को उधर ग्रेट बैरियर रीफ में जाने का, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को पता ही नहीं सारी चीज़ें क्या होती है. मेरे को पैसे चाहिए जस्ट बिकॉज मेरी मॉम खुश हो जाए, बस इतना ही था मेरे लाइफ में सपना. तो जब मैंने छोड़ा, मतलब सो एवरी ईयर आई हैव टेकन 1 leap of faith. Every year. When you were earning 45,000 or overhead 1 lakh, how was this working? Because that's a very stressful situation. My mom has been teaching people, like kids, since the time, I think when she was 12. What? Yeah, she's a teacher, I know private she's a tutor. teacher. She's been teaching since the time she was 12 because father passed away. She had her brother, she had a sister to take care of, my nanny also to take care of. So जब भी बर्थडे होता था वो लोग के टाइम पे ना, तो बर्थडे पे गिफ्ट के टाइम पे ना घर पे कुछ रखते थे, उसको बोलते थे, गुजराती में बोलते कि कोई वसावी ली दो हमें, कि आज मिक्सर ले आएगा, कि ऑल दीज थिंग्स, यू नो, कि आज घर पे ये आएगा. बर्थडे पे वो लोग वैसे प्लान करते कि बर्थडे आएगा तो कुछ घर पे आएगा. सो वो सारी चीज़ें थी. एंड माई मॉम थोड़ा वो कर रहे थे, थोड़ा मैं कर रहा था. माई डैड वॉज देयर एट दैट टाइम. ही पास्ड अवे इन 2022 एंड ही वॉज पैरालाइज्ड फॉर लाइक गुड 10 years. तो उनका कुछ नहीं चल रहा था, सब कुछ प्रॉब्लम में था. एंड स्टिल
वी वर मेकिंग कंटेंट, वी वर मेकिंग फन ऑफ इट, वी आर लिविंग लाइफ. क्योंकि जब भी पैसा कम था तभी मज़ा बहुत आ रहा था, पर अभी पैसा ज़्यादा आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो अभी मज़ा कम हो गया लाइफ में. क्योंकि अभी वो चाहिए, पैसा चाहिए कि करना है. क्योंकि जैसे आई हैव अ ह्यूज लव फॉर स्नीकर्स. आई डोंट नो अबाउट the base, geometry and the geography and the science about sneakers. मुझे बिकॉज चाहिए स्नीकर्स, बिकॉज मेरे को ना बोला गया था बचपन में कि पैसे नहीं है तो कुछ भी शूज़. एक ही शूज़ था जो ब्लैक कलर के अपने स्कूल के शूज़ होते हैं, वो बाटा के हाँ. वो भी जब तक यहाँ से नहीं फटते ना तब तक यू हैव टू यूज़. तो वैसा शूज़ दिवाली के टाइम पे शूज़ मिलेगा, तो कोई बड़ा भाई होगा उसके कपड़े मेरे को मिलेंगे. तो मेरे को उसके शौक बहुत है कि शूज़ मेरे घर पे रोज़ आने चाहिए. महीने में एक बार 2-3 शूज़ लेते हो अच्छे से. और नानी चलाती है. नानी बहुत चिल्लाती है कि इतना कोई शूज़ होता है खर्चा, पर मैं क्या बोलूँ अभी. सो दीज आर थिंग्स विच आई वांट टू लिव एंड आई. तो वही मेरी चीज़ें है घर पे, मेरे घर के लिए कमाता हूँ मैं. कि व्हेन ये जो कंटेंट क्रिएशन यू स्टार्ट एंड डिसाइड कि मुझे जॉब छोड़नी है, हाउ डिड यू कन्विंस देम कि मतलब यू नो लाइक बिकॉज लाइक यू सेड राइट, स्टेबिलिटी ही सब कुछ होती है उस वक्त पे कि लाइक सैलरी आ रही है ना, हाथ में पैसे आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ, जो चाहे जो भी हो, दिस विल कम. दिस वाज basically my management who manages me right now promised me saying कि तेरे को एक मिनिमम गारंटी देते हैं हम लोग कि तेरे को पैसे आए ना आए, ब्रांड आए ना आए, कुछ काम चले ना चले, यू विल गेट 2 लाख अ मंथ, कुछ भी हो जाए. लकीली आई वॉज सो हैप्पी दैट मंथ ओनली वी मेड 6 lakhs, विच इज़ लाइक मेरे साल का पैसा एक महीने में आ गया. सो दैट बिल्ड ट्रस्ट, बिकॉज सी दी पेरेंट्स आर नॉट लाइक कि तुमको करने नहीं मिलेगा. इट्स लाइक हमको पता है हमने क्या देखा है, तो तुम लोग वही देखोगे तो हमारा लाइफ वहीं का वही रहेगा. तो वी वांट द बेस्ट कुशनिंग फॉर यू. करेक्ट. पर आई वाज, इफ पीपल टेल मी रूल्स, नो आई डोंट लाइक इट. मेरे को मेरे रूल्स खुद बनाने. मेरे को पता है कि मेरा बाउंड्री यहाँ तक है. इन द स्कूल ऑल्सो आई वॉज वेरी मिस्चीवियस, बट आई न्यू माई बाउंड्रीज के इधर से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा वो. सो मुझे मेरे बाउंड्रीज पता है, और मुझे कोई बोलता है ना ये नहीं कर सकता, तो मेरा दिमाग चलता है कि क्यों नहीं कर सकते, इसको फाइंड आउट करते, सोल्यूशन देखते और कर सकते उसको, ये कर सकते. तो वहीं से my sister also tried to help my talk to my mom कि ऐसा भी कर सकते, कर देखते, एक बार ट्राई करते, एक साल ट्राई करते देखते क्या होता है, देखा जाएगा. We tried और फिर चल रहा है, तो अब तक चल ही रहा है. I was doing engineering and I had to drop out because I had no money for that engineering fees also. तो बहुत खरा कुछ चल रहा था. पर अभी we bought a house. Wow. I wanted to gift my mom a house because as a family we never had a house. So I wanted to gift my mom a house जहाँ पे वो खुद अपने पार्टीज होस्ट करे, किटी पार्टीज होस्ट करे और अपने लाइफ में जिए अपने. बस आई वांटेड दैट. तो हो रहा है, अभी चल रहा है थोड़ा थोड़ा. काफ़ी अच्छा चल रहा है. अरे टच वुड. और जब ये बड़ी चीज़ें होती है राइट, लाइक आई सेड, मैं देखती ही रहती हूँ, लाइक आई सी एन एड कहीं पे यहाँ वहाँ, the IPL ad that you did, how was that? Like what was the reaction? क्या था कि क्रिकेटर के साथ ad कर रहा है IPL में, like the festival of India. yeah, it's great because you know when you see, we people in general, middle class people, we love validations. People कोई आके बोलते हैं ना कि तूने अच्छा किया, हम लोग को लगता है आज दिन अच्छा कुछ तो किया आज. Like इधर पैसा कमाया या तो फिर नाम कमाया, कुछ तो चाहिए घर पे आने के लिए. तो वैलिडेशन, जब भी लोग किसी को प्यार कर रहे हैं और वैलिडेशन वहाँ से आ रहा है जो लोगों के लिए हीरो है, पर वो हीरो अपने को बोल रहा है कि तू अच्छा कर रहा है, तो वो अलग ही फीलिंग आता है. एंड आई वांटेड टू बी विथ मुंबई इंडियंस सिंस द टाइम आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट द IPL कि क्या होता है ना क्या हो रहा है. बिकॉज सचिन तेंदुलकर, आई एम ह्यूज फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर. तो जब वो उसको फॉलो कर रहे थे, उनके टीम में आए, मुझे लगा दिस इज़ माई टीम, आई वांट टू फॉलो दिस टीम. जब मुझे मेल आया पहली बार कि we should work together and all this, it was outstanding for me कि मतलब इससे ऊपर कुछ लाइफ में हो ही नहीं सकता. and they were talking commercials and all this thing. I said एक तो नहीं बोलते तो भी मैं कर लेता, अभी सपोर्ट करने का पैसा भी मिल रहा है, मतलब ये क्या है, ये क्या सही लाइफ चल रहा है. so because the team, the family who runs the team, everyone's just great. Everyone, if you are there for the right intentions and same goals, they will love the way you work and they will love you the way you are. And I've been very lucky to be there. अच्छा चल रहा है मस्त. अभी जब आया था रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, हार्दिक एंड आई आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो. सो वो भी चल रहा है अच्छा से. अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वैलिडेशन मिलता है लोगों से. तो ऑफ कोर्स. टेल मी सम मेमोरीज विद रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जो अभी तक बताई नहीं है. See, basically I think रोहित और मेरा सेम स्कूल सेम जगह से आते ना, तो हम लोग का वाइब
मैच हो जाता है वहाँ से हाँ. कि मतलब हाँ कैसा है वो, कैसे चल रहा है ना बराबर, हाँ ध्यान रखने का ऐसा सब, लाइक ही इज वेरी बोरली, like he's because of the world he has to be थोड़ा बहुत ऐसा, हाँ but if you see right now also थोड़ा बहुत traits आ जाता है कि हाँ छोड़ना यार, करते ना यार, क्या है वो ऐसा सब करते हैं. That's how I talk. Yeah. That's how it is. That's how we talk in there. That's Yeah. how it is. And we play games. Mumbai Indians का there's this hotel में जहाँ पे हम लोग we go there, we play games. तो चलता है, मतलब he calls me गिला नहीं करना, कर लेते ना है वो, मस्ती करेंगे ना ऐसा, बोला ठीक है. तो भी है, देन वी लाइक कहीं शूट्स पे मिल जाते हैं, बट ही ऑल्सो नोज हिज बाउंड्रीज के इतना ही करना है, इतना ही रहना है. तो वो भी अच्छा है. आई रियली लाइक व्हेन पीपल हैव बाउंड्रीज के इतना ही रखना है. लाइक हार्दिक ऑल्सो हैज हिज ओन बाउंड्रीज, बट हार्दिक गुजराती कनेक्शन से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं हम लोग. एंड इफ ही लव्स यू, ही लव्स द शिट आउट ऑफ यू. But if he doesn't like you, he will not like you the way whatever happens in your life, he will not like you. So you know, it's so funny. He was giving an interview like हाँ या ऐसा कर सकते हैं, and then cut to me, भाईलू बराबर बोले ना, बराबर होता ना, मस्त था. So it's so good to be around people, and when you realize कि these are normal people, these are not कैसे जिसको भगवान बना देते हैं, वो normal लोग हैं यार, उससे normal बात करो तो वो लोग प्यार करेंगे. But if you just go inside their private life and just take life, you know, सब मस्ती करते हैं, फिर वो लोग भी irritated हो जाते हैं, फिर लोग चुप हो जाते हैं वो लोग. मैंने I just said in an interview कल कि it was on my bucket list, ठीक है, किसी 2011 वर्ल्ड कप जब हुआ था, I was like I will interfere. I'm a big cricket fan by the way. Oh wow. Massive. तो मैं टेस्ट मैच देखती हूँ. Wow. तो I'm like, and IPL का हर game like it's always on in the background etc. तो I know everything. तो 2011 and धोनी is धोनी. तो ऐसा ना कभी तो in life like कुछ तो I'll interface him. I'll meet him. I don't know what. तब तक humans are bomb nothing. And now last year I got invited to a panel with him. ठीक है. Wow. And you know, he was saying कि ये तो normal लोग ही है. So I got onto stage and they introduced me whatever कि Karishma, humans are bomb. And he's like, hi, I'm MS. See, imagine. Yeah. Everyone knows it. Yeah, I was like, yeah, I know. So this is what it is. No, so, and I am a very good observer of people. Whatever I have right now is not mine. I'm always like कहीं ना कहीं से ट्रेड ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ें. I love gossips by the way. I really I'm a monger of gossip. I love because tell some gossip. No, ऐसा gossip नहीं कि मतलब लाइफ में इसका क्या टूट रहा क्या हो रहा है. I like because I learn out of these things कि ऐसा तो नहीं बोलना है, ये तो नहीं करना, because we are not media trained in general, you know. हम लोग का क्या है, मीडिया ट्रेंड कांदिली में कुछ नहीं होता है, हम लोग जैसा वैसे ही रहते. तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है कि ऐसे बात नहीं कर सकते, इसको ऑफेंड. फॉर एग्जाम्पल ओवर द टाइम I became woke. I was never woke. I didn't know what is progressive. I didn't know what is regressive. I had never had any idea about all these things. Over the time, when you learn things, you come to know कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. Because ये हमको कोई सिखाता नहीं है, आपको मालूम पड़ता है. बिकॉज ये सब नॉलेज है ही नहीं यार, हम लोग में इनबिल्ट नॉलेज नहीं आती. You see things on the internet and you're like, oh my god, ये नहीं बोलना है, ये और ये कभी नहीं करना है. Like ये कभी भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यू नो व्हेन दे से अरे क्या चूड़ी पहनी है क्या, ऐसा मतलब you don't realize. नहीं, और बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे. हाँ, you don't realize कि you're offending people. और जैसे फॉर एग्जाम्पल everyone says कि मतलब we are woke then they say कि भाई यार लड़की जैसा रोता है. अरे पर वो भी वही है ना यार, वो नहीं बोल सकते तू. करेक्ट, नहीं बोल सकते. एंड पेरेंट्स का भी बहुत गलती होता है इसमें. और एक्चुअली ये शिफ्ट हुआ है लास्ट आई थिंक 5-7 years जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा हो गई है, बिकॉज यू गेट इंस्टेंट फीडबैक, राइट? करेक्ट. ये तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो और काफी सारी ट्रोलिंग हो रही है XYZ. तो I'm learning over the time चीज़ें भी, कैसे बात करना है, क्या नहीं करना है. तो मेरे लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वर in my childhood we used to play cricket and all. So when I used to drop catches, मेरे को लोग बोलते थे क्या लेडीज़ है क्या कैच छोड़ रहा है. I said ऐसा मुझे लगा कि गाली होगा, मुझे नहीं पता था. So when I came to like this office अंधेरी में फिल्टर कॉपी में तो मैंने बोला अरे क्या लेडीज की तरह कैच छोड़ रहा है, वहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहे थे. Then everyone stood still. I said ये क्या हुआ. फिर मालूम पड़ा अरे ये नहीं बोलते. Then I learned, you know, I'm not denying कि मुझे सब कुछ आता है. लेकिन प्रॉब्लम है ना कि if you're in the public eye, you are expected to कि मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती. Of course, यही प्रॉब्लम है. Unforgivable. Yeah, but see that's what I'm saying. कोई और बंदा अगर उसी फील्ड पे सेम करता, it would be very different. अलग हो जाता है, पर ये नहीं बोल सकता.
And you know, after being in corporate life, I realized कि if you say in my opinion and मुझे ये लगता है, public होता है हाँ अभी तो बोल सकते हैं. You know, if you say wrong things also हाँ बड़ा in my opinion बोला ना ठीक है. You don't tell us what to do, but if you tell me हाँ this is what you feel, okay great, this is nice. So then I'm learning things about how to be politically correct, how to be nice to people, how to be good, because these are the people who thinks you are someone. So you have to give them what they want. नहीं, But और good part is, responsibility होती है. if you own up to your thing, no, for example, कि तुम बताओ, तुमको सिखाओ. You know, there are certain family members के उसके सामने वो ज्ञान देते रहेंगे बात बात पे. तो उसको पहले से पूछते हैं ना सर आपको कैसा लगता है, तो बोले बेटा अभी आया ना, मैं क्या बोलता हूँ. Then you become friends to them. Yeah. So touch wood, अभी तक मुझे कोई भी hate नहीं मिला है on social media, never. Because they always want me to be, because मैं वो लोग से ही आया हूँ ना, वहीं से काम करता हूँ, अभी भी वहीं रहता हूँ मैं. And I will never leave my hometown, I will never leave my community, I will never, you know, जहाँ पे मैं गरबा खेलता हूँ उतने टाइम से वहीं पे खेलता हूँ, वही दोस्तों के साथ खेलता हूँ. ऐसा नहीं कि मतलब अभी मैं बड़ा होगा मैं खेलता नहीं है. वहीं जाता हूँ, लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग का काम है, मेरा काम अलग है, वो करता रहता हूँ मैं. तो दे वांट मी टू सक्सीड इन लाइफ. दे रियली वांट कि हाँ तू बड़ा कर, तू लाइफ में तू कुछ ना कुछ कर. तो वो लोग मुझे हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं कि ये नहीं बोलना है विराज तेरे को. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्रमोट रैंडम ब्रांड्स, इफ यू लाइक विराज ये ब्रांड ने उस दिन ऐसा बोला था तो देखो ये ब्रांड नहीं प्रमोट करना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना खाली. तो ये सारी चीजें आती है. ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा भी होता है. बट इफ यू ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद देम, इफ यू ट्राई टू बी लाइक अभी मैं बड़ा हो गया, मैं तुमसे बात नहीं करता, तो फिर वो लोग बोलेंगे तू बड़ा हो गया, अभी दिखाते हम लोग कैसे. बिकॉज दे हैव मेड अस. इफ यू हैव टू बी इन दिस इकोसिस्टम यू हैव टू वॉक टू विद देम, वरना तो वो लोग आपको तुरंत गिरा देंगे. What do you think of whatever happened with Ranveer etc. on India's Spotlight? See, for me, देखो there are two things morally very wrong, but अभी उसको बोलना है, वो बोल दिया उसने, तो उसने सॉरी बोल दिया, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी. पर अभी इतना लंबा खींचे जा रहे हो, इतना कुछ ना कुछ हो जा रहा है, खोए जा रहा है. मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरत था इंडिया को. इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने को. इफ़ ही वॉज रॉन्ग तो सॉरी बोल दिया, ही विल नेवर डू इट अगेन. आई डोंट थिंक ही विल एवर डू इट अगेन. कोई भी कुछ नहीं करेगा. बट अगर वो आप समझाओगे, बोलोगे कि गलत था, हो गया गलत, नहीं बोलना चाहिए, ख़त्म हो गया बात. उसको तुम प्राइम टाइम पे चला रहे हो, उसको तुम इतना कुछ लंबा चल रहा है, इतना कुछ बातें कर रहे हो उसके बारे में. अपने पास टाइम कहाँ है? मुंबई में टाइम कहाँ है लोगों के पास? तुम लोग इतना टाइम कहाँ से आ रहा है? बट ये वही सिखाता है ना कि इतना फिकल होता है. बिकॉज वो 2 minutes एक्चुअली वाज लेड टू ये जो सारा हो गया. क्योंकि क्यूमुलेटिवली तो 2 मिनट से ज्यादा था नहीं जो exactly. लोगों को ऑफेंड कर दिया. See, I'm not supporting what he said, but I'm just saying if he's wrong, just tell him that you're wrong. You should not be saying all this thing because this is what it is. But you know, I feel कि तुम अगर बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि गाली दे रहे हो, बोलते हो ये भारत के संविधान के अलाउड नहीं, और गाली दे रहे हो, गाली देना कौन सा अलाउड है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेइंग दिस इज आवर, यू टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स एंड ऑल, तुम गाली में माँ बाप की गाली दे रहे हो ना, तो गाली कैसे दे रहे हो तुम? एग्जैक्टली. गाली भी तो गलत ही है. तो दैट्स व्हाट आई फील के हो गया, अभी उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए था. यू गॉट योर अपॉलॉजीज एंड फिर यू गोइंग टू देयर पेरेंट्स, यू गोइंग टू देयर मॉम्स, यू गोइंग ऑल दिस थिंग्स. करियर है ना लोगों का, खराब हो जाता है लोगों का, और उसके कारण पेरोल पे है. हाँ, इट इज फैमिलीज दैट आर लिविंग ऑन दैट. एग्जैक्टली. तो आई फील, so as a, see, I would not say I'm supporting, but I'm just saying he's wrong. He was, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सबके बीच में, बट हो गया, गलती हो गया. गलती अब सब लोग से होती है, तुम लोग ने भी, सब लोग ने गलती कहीं ना कहीं कही होगी. जस्ट उसको एंड कर देना चाहिए. तो वहीं पे इतना, मैं तो आफ्टर 2 दिन का अगर चल रहा है तो मुझे लगा भाई अभी लोग पागल हो गए, अभी लोग कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे. मतलब लोगों के पास बहुत टाइम है. आई वॉन्ट दिस प्रिविलेज ऑफ टाइम. इतना टाइम कहाँ से आ रहा है लोगों के पास? तो वो मेरा 2 cents था इसके ऊपर. करेक्ट. एंड योर पिवट इनटू फिल्म्स, उसके बारे में बात करते हैं. हाउ हैज दैट बीन? और अभी तो आप फिल्म स्टार हो गए. तो अरे नहीं भाई, इट्स बिकॉज मुझे चाहिए था कि गुजराती में ना लोग यूजुअली पहले अपने पेरेंट्स जाते थे प्लेस देखने. आई डोंट नो प्लेस. मैं प्लेस पे काफी गई हूँ. है गए हो ना? हाँ. मजा आता है कि नहीं? हाँ. पहले जाते थे लोग, अभी लोग नहीं जाते. एंड इट्स ब्यूटीफुल. वो जो सेट बदलता है, लिविंग रूम सेटअप, फिर कुछ और. ऑफ कोर्स तो वो सारी चीजें ना मुंबई में बहुत कम हो गई है फिलहाल. एंड सिंस आई हैड दिस प्रिविलेज ऑफ क्राउड फॉलोइंग मी एंड ऑल, सो आई वांटेड दिस क्राउड टू गो फॉर फिल्म्स, go for plays, go for, you know, stand up and all. So I tried to take these things to cinema and all. And luckily there's this producer Mansi Parekh and Parthiv Goyal who's also an actor,
मानसी ने बोला कि यू वांट टू ट्राई समथिंग इन फिल्म्स. आई सेड या बट व्हाट इज इट. आई सेड कि इट्स गुड, योर लीड रोल है, ऐसा सब है, ये है. ऐसे लीड रोल बोलने का आपको आगे कुछ बोलने का ही नहीं है. मैं रेडी है. पैसा भी नहीं चाहिए मेरे को लीड रोल चाहिए. एंड we made this film in very less budget, like something around 3 or 2.53 crores something, and we made like 25 crores. This film did very well. And yeah, so it's good. I'm learning new things because you make videos for shorter time. Suddenly you're making like a movie, बड़े screen पे बड़े लोग देख रहे हैं, randomly बच्चे लोग आके बोल रहे हैं I saw your movie, आंटी लोग आके बोल रहे हैं I saw your movies and all. And I learned this from Shah Rukh Khan that I don't know उसने बोला था कि नहीं, बट ऐसा मुझे लगता है कि he is सबका बॉयफ्रेंड, he is सबका सन, he is सबका ब्रदर, he is सबका फ्रेंड. सो मुझे वो बनना है, मुझे सबका भाई बनना है, सबका बॉयफ्रेंड बनना है, सबका वो बनना है. ऐसा लगता है कि घर पे ऐसा होना चाहिए ऐसा. तो आई वांट टू बी दैट पर्सन. सो दिस इज व्हाई माय कंटेंट आल्सो इज नथिंग लाइक क्रास. कुछ भी नहीं है, घरेलू चीज़ें बोलाता हूँ, नो गाली गलौज, कुछ भी नहीं. तो माय इंस्टाग्राम फॉलोइंग इज आल्सो वेरी cool. I feel it's 50 men, 50 women. Wow, which is very good. That's very really good like and very unique. Very unique. So I really like क्योंकि usually females come to me like कि अरे I love you, मतलब तेरे husband को जरा ऐसा थोड़ा संभाल. तो it's just great because if you see my stand up also which I'm doing right now, 60% 70% are women who wants to come and they get their parents, they get their parents, they get their partners, they get the kids and all. So where I grow, they also grow in 100%, things. Like पहले एज ग्रुप था हम लोग का 18 to 24, now it's 24 and above. So जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ वो लोग भी ग्रो हो रहे हैं. मैं अभी वीडियोस डाल रहा हूँ रिलेशनशिप्स के, मैरिज के, शादी के, तो वो लोग को भी लग रहा है कि हाँ अभी इसका कंटेंट ऐसा शिफ्ट होने वाला है थोड़ा. कि जो मेरे लाइफ में होता है वही डालता हूँ. अभी मैं क्या गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाऊँ, मेरे पास है ही नहीं गर्लफ्रेंड. अभी मेरे पास वाइफ है, तो वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं. वो जो स्लोगन था Here for Viraj. Oh हाँ. Took the internet by storm. Did you ever expect it? It was just planned. मुझे खाली से बेसिकली आई टोल्ड यू ना आई लव वैलिडेशन. जब वो नहीं मिलता ना तब मेरे को लगता है कि अभी दिखाना पड़ेगा कि कितना पावर है गुजराती लोग में. तो वही था. सो दिस हैपेंड बिकॉज फिल्टर कॉपी में ना आई वाज ऑलवेज लाइक द गाय टू बेस्ट फ्रेंड 3 ऐसे रोल्स मिलते थे मुझे. कि मतलब दो मेन लोग हैं, लिखते हैं क्या गाय टू बेस्ट फ्रेंड, गाय टू ऐसा लिखते थे. तो मैं बोलता भी लोगों कि मैं गाय 2 बनने जा रहा हूँ आज. फिर ऐसा तो पता था सीनो 2 लोग एक्टिंग कर रहे तो उसका शोल्डर में था कैसा, हाँ कैसा है, चले जाता था मैं. मैंने रियलाइज कि मेरे को तो ये नहीं कि मेरे को तो फेमस बनने का है, मेरे को तो पैसा कमाने का है, ये तो क्या कर रहा है ये सब. गाय 2 नहीं बनने का, मेरे को गाय बनने का है, गाय 1 भी नहीं, गाय बनने का है. सो एज यू नो कि मेरे भाई लोग ऐसा पढ़े सब अपने एरिया में हुड में भाई आजा. हाँ, तो मैंने बोला जैसे मेरा शोल्डर दिखेगा या मेरा चेहरा दिखेगा सबको लिखने का ईयर फॉर विराज, सब लोग को. तो कुछ 2,500 कमेंट आ गए. सब लोग फ्री बैठे ना, चलो ईयर फॉर विराज. तो अदिति एंड अश्विन एंड अनिरुद्ध जो फाउंडर्स थे उन्होंने इस पे बहुत कमेंट आ रहे हैं. एंड व्हाट दे वांट एंगेजमेंट ओनली इन देयर लाइफ, कमेंट्स और अच्छा आने चाहिए बस. तो बोला इसको लीड बनाओ. मैं suddenly afterward I'm the face of filter copy because I'm not a conventionally good looking actor, okay, or a person, but I know power बहुत है. But ये concept तो गया ही, like the good looking actor etc. Like you see right, like even like हमने राजकुमार राव से इंटरव्यू किया. He's also like कि मैं कौन सा शाहरुख खान दिखता हूँ, but अभी मेरी जगह है क्योंकि मैं एक्टिंग एक्चुअली कर सकता हूँ, मेरे में टैलेंट है. करेक्ट. मैं वही बोलता हूँ, मैं कहाँ ऋतिक को, मैं खुद को बोलता हूँ. But see, if you are true to yourself and if you can make people laugh, I think that's also an added quality that people adore. कि हाँ चलना फनी तो है, अच्छा. People tell me like why losing weight? तू पहले मोटा था ना तो बहुत मस्त दिखता था और अच्छा लगता था, चब्बी फनी क्यूट करता. मतलब मेरा हेल्थ खराब हो रहा है. तुम्हारे क्यूट के लगा वही, मतलब तुम क्यूट बन जाओ मैं मर जाऊंगा इधर. तो एवरी थ्रेड कमेंटिंग एंड फिर मेरे को लीड बना दिया और फिर मैं काम करने लगा, फिर मेरे को मिल गया. I wanted to do. और फिर धर्मा के ट्रेलर पे Here for विराज हो गया. अरे यार वो लफड़ा किधर से क्या वाला न्यूज़ में आ गया था. मैंने ऐसे ही मस्ती में बोल दिया था बिकॉज वो ट्रेलर लॉन्च पे नहीं लेके गए थे. मतलब ठीक है बिकॉज इफ दे टेक मी देयर आर 2,000 अदर पीपल ऑल्सो दे कैन टेक. नो ऐसा मतलब कि मुझे क्यों नहीं बोला. वो शशांक ने बोला था कि फिर सबको बुलाना पड़ेगा एंड विच इज़ नॉट वहाँ पे कैसे बैठेंगे, सबको बुरा लगेगा ना. तो इट्स ओके, जो मेन एक्टर्स है वो लोग जाएंगे. मतलब हाँ ऑफकोर्स वो लोग मेन है वो लोग जाएंगे, पर अंदर तो आपको जाना है ना. अंदर तो जाना ही आपको. तो मैंने बोला एक काम करते अपन अपना पावर भाई लोग आ जाओ. सब ने लिख दिया. फिर ऐसे फोन आया ऐसे टाइम पास में कि भाई प्लीज इसको मत कर, बस बोला कुछ नहीं टाइम पास करने दो. बोलते बहुत कमेंट्स आ रहे थे हमारे.
ठीक है, for fun I like all these small wins in my life. Thank you. काफी मतलब cheap thrills are the best thrills. I don't consider big wins as big wins. I feel like that's work, but small wins no. For example, मेरे एरिया में एक फरसान वाला है, बोलता है राजू भाई ढोकला वाला, ठीक है. वहाँ पे मैं बहुत 2-3 घंटा लाइन लगाता था, ढोकला मिलता था मेरे को वहाँ पे, बिकॉज लाइन लगाना पड़ता, संडे को जलेबी काटे के लिए लाइन लगाना पड़ता था. अभी मैं जाता हूँ तो बोलता है विराज भाई तुम्हें पिला वो, बोला ये जीत है भाई, ये चाहिए मेरे को लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए बस, दैट्स इट. बट आई डोंट टेक दैट, सो नाउ आई डोंट गो देयर बिकॉज फिर वो लोग, आई फील इट्स रॉन्ग फॉर पीपल कि लोग खड़े और मेरे को लेके जाते. तो मैं टेल समवन फ्रॉम माई फ्रेंड और माई हाउस हेल्प एनीवन कि प्लीज जाके लेके आ जाओ. वरना फिर वो लोग बोलते नहीं आपसे पैसा नहीं, फिर लोग लाइन में खड़े पैसा भी नहीं लेते. मुझे वो बुरा लगता है कि वो प्रिविलेज मुझे नहीं चाहिए. मुझे मेरा काम हो रहा है, लाइन में खड़े रह के भी कुछ भी आई एम ओके. वो प्रिविलेज से डर लगता है कि कोई प्रिविलेज बोलता है आया बड़ा स्टार, ऐसा मुझे नहीं चाहिए. कोई भी जाके मुझे बोल दे कि हाँ इसको मिल जाएगा ना. जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे जरा भी. आई बी लाइक नॉर्मल पर्सन, स्टैंड इन लाइन, डू माई जॉब, go to concerts, chill life. That's what पलक teaches me. कि बोलते कि तू स्टार होगा तेरे काम पे. रियल लाइफ में ना तू मेरा हस्बैंड है, तू घर पे एक आदमी है, यहाँ पे तेरे को काम करना है, यू हैव टू लिव द लाइफ नॉर्मली. तब जाके लोग तेरे साथ रहेंगे, वरना लोग चले जाएंगे. इफ यू स्टॉप बीइंग रिलेटेबल टू पीपल देन यू विल बी लाइक अरे हाँ हमको दूसरा लोग ले लेंगे. सो दैट्स व्हाट, वो ग्राउंडिंग जो मेरे को घर से मिलता है ना, कहीं से नहीं मिलता. द बेस्ट. एंड आई डोंट हैव एनी यस मेंस इन माय लाइफ. नो, एवरीवनस लाइक नहीं तू गलत किया है, ये तू गलत, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. सब लोग अपने लाइफ में मेरे को बताते रहते कि ये गलत, बिकॉज इन दिस लाइफ, इन दिस फेम एंड ऑल दिस थिंग यू फॉरगेट व्हाट यू आर. You want to just reach somewhere. So these guys just help me कि ये नहीं करना, ये नहीं करना है. Live your life. So I really like being around them. मेरे पास कोई ज़्यादा work friends नहीं है. सिर्फ मेरे friends हैं जो 12-15 लोग हैं, जो मेरे शादी में भी आए थे, वही 15 लोग थे. वो मेरे भाई लोग हैं और भाई लोग के कुछ भी होता अभी भी वैसे ही रहते हैं वैसे. I don't know, ये भी था कुछ थोड़ा चेंजेस हुआ है क्या लाइफ में? ऐसा था ना मैं, बस ऐसे ही मेरे को अच्छा लगता है. So when you know ऐसे जो comments misinterpret हो जाते हैं, जैसे जवान का हुआ था, how do you handle that? क्योंकि वो तो मतलब random से भी random था. If I have not done anything wrong, I will not own up to it. But if I have done wrong, I will own up to it. And I don't have any shame to be apologetic in that particular part के गलती होता. पर मैंने कुछ बोला ही नहीं. तो मैंने क्या बोला मेरे को मज़ा नहीं आया, तो मेरे को नहीं आया मज़ा. अभी मैं क्या करूँ? उसके कारण क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स ने भी मूवी नहीं देखा ऐसे ही कि मतलब नहीं भाई अपना भाई का ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि रोल काटना उसको नहीं समझ में आता कि रोल काटना जरूरी है, क्योंकि फिल्म में जरूरी है. ये लोग तो कहता भाई का रोल नहीं काटना चाहिए बस. बाकी आगे पीछे कुछ नहीं. कैसा मैं समझा वो लोग को. तो बोला वो लोग, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज सी आई वेंट विद सो मच हाई होप सेइंग अरे मेरा फिल्म में पलक बाजू में थी, मतलब हम लोग प्रीमियर में बैठे, बोला देख मजा आएगा, खत्म हो गया. बोला अरे मेरा रोल किधर है? तो बोला अरे यार काट दे. इतना ही था मेरे लिए. तो मेरे लिए नहीं था, मैं नहीं मजा आया. बिकॉज सी फॉर द फिल्म इट इज इम्पोर्टेंट टू एडिट थिंग्स. तो मेरा नहीं होगा तो नहीं कट किया. एंड दे हैड अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि क्यों कट किया है. पर अंदर से तो चाहिए ना अपने को. लॉजिक नहीं चाहिए मेरे को शाहरुख खान के साथ रहने का. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नेवर शॉट विद शाहरुख खान. वो अलग जगह पे शूट हो रहा है उनका, वो शूट हो चुका है, ये तो बाद में शूट हुआ है. आई हैव नेवर मेट हिम. उसमें लोग बोलने लगे विराज वर्स्ट एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान. अरे कैसा वर्स्ट? मैं मिला नहीं है उसको. एंड तो होता है, और हर फिल्म सेट पे कोई ना कोई लोग होते हैं, और गलत कोई नहीं होता, सब अपने हिसाब से राइट होते. पर अपने को नहीं समझ में आता तो अपन चुप रहते. तो मैं चुप रहा था. मैं बोला नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं, क्योंकि धूप में 12 घंटा खड़े हो, सब कुछ काम चल रहा है, उसमें मेरे को रोल काट रहे, लोग नहीं आ रहे, और ऑलमोस्ट ऑल द पीपल देयर वर साउथ इंडियंस. आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑल्सो. मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग क्या बात कर रहे हैं. तो मेरे को नहीं मजा आ रहा है ना, मेरे को फील ही नहीं आ रहा है मेरे को. तो मैं क्या बोलूँ? तो बोला अरे विराज वर्स्ट एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान. अरे मैं मिला ही नहीं है. पर तो ये लोग तो मेरे आई स्पोक टू माय मैनेजमेंट सेइंग ये सब क्या चल रहा है. सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी डर गई थी कि भाई रोज तेरे बारे तू क्या शाहरुख खान को बोल के आया. मतलब मैं क्या बोल के आया, मैं कुछ नहीं बोला है. एंड देन धर्मा थिंग हैपेंड एंड ऑल दिस थिंग्स. बट आई स्पोक टू द रिस्पेक्टिव पीपल जिसके साथ था. उससे बोला वेलकम टू इंडस्ट्री, ऐसे ही होता है, तुम टेंशन मत लो. मैंने सबसे बात कर लिया था जिसका नाम इसमें था. मतलब भाई ऐसा सब है. उसने बोला वी डोंट देखता भी नहीं, ये ऐसे होता रहता है. 2 दिन 3 दो अपने आप चला जाएगा. हफ्ता दिया अपने आप चला गया. कुछ होता नहीं, अपना लाइफ नॉर्मल चल रहा है अपना. बट पीपल आजू बाजू बिकॉज दे वांट यू कि तुम्हारा लाइफ खराब नहीं होना चाहिए. तो मेरे बीच में जो सेम किराना वाला है वो बोलता है विराज भाई क्या बोल दिया आपने. मतलब भाई मैंने नहीं बोला. तो सीख या ऐसा हम लर्निंग न्यू थिंग्स. वी आर ऑल लर्निंग. हम मीडिया ट्रेनिंग. हाँ हमारा मीडिया ट्रेनिंग चलते ही रहता है. बिगेस्ट लेसन ट्रेनिंग में बोलो ही मत.
हाँ हाँ बोलो ही मत, अपने हिसाब से बोलो। हाँ इसलिए मैं चुप रहा उस दिन, मैं कुछ बोलूंगा वो लोग को और 2 दिन लगेगा। एक one person says this, you are right, second person says you are also right, Yeah. सब right है। सब राइट है। किसी को पता ही नहीं। आज वरुण धवन ने बहुत सही डाला था, आज स्टोरी डाला था, सब लोग को कुछ ना कुछ करना पर किसी को पता ही नहीं क्या करने का। बहुत सही डाला था। सो वो भी है। Okay, so now we have unfiltered opinions, ठीक है? Unfiltered opinion देना है, Okay. and I'm going to say the line, Okay. ठीक है? कुछ सिनारियो है, Hmm. ठीक है? शादी पे 50 लाख उड़ाना, No. no, Very bad. very bad. Why you want to spend so much money? हाँ. Invest, because गुजराती है, बोलो इन्वेस्ट करो, ट्रिप पे जाओ, इतनी बड़ी बिजनेस पार्टी, डालो। इतनी बड़ी पार्टी नहीं दे सकते। नहीं मैं नहीं डाल सकता। Get ready with me reels. She. क्यों? See, I like to take. What is the amount? एक ब्रांड को कितना देना पड़ेगा to get you to shoot a get That is ready? a very good question. Yeah, it's a very good question. Get ready. See, with I'm me. not denying मेरा जॉनर नहीं है ये ऐसा, because I said she because मेरा जॉनर नहीं है। पर मैं को कोई पैसा देगा तो मैं कर लेगा। कितना? What is the base amount? 20-25 लाख देगा तो मैं कर लेगा। मैं बिका हुआ है वैसे, मेरे ओपिनियंस भी बिका हुआ है बहुत। पैसा कर दो, मेरे को पैसा से। सी बिकॉज जिसके लिए चल रहा है बट मेरे लिए नहीं चलता। मेरे को लगता है कि मैं क्यों देखूँ। फॉर मेरे लिए ना थोड़ा इंग्लिश वाइज ना, मतलब गेट रेडी विथ मी, मतलब मेरे को भी तैयार होने का है क्या, मेरे को वैसा लगता है। तो मैं उसका एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग इज थोड़ा इलॉजिकल आई फील। people, you know, when they make a video about this or put a story कि which one do I pick, this or this, पर मैं जब तक तब तक ये फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो नाउ आउटसाइड नाउ, हाँ, और तुम अभी जा रहे हो कि जल्दी टेल मी which one to pick, this one or this one, मैं कल देख रहा हूँ वीडियो, मैं पिक कर लिया पर तुमने तो पहन लिया ना, तुमको जो पहनना था। What if I tell you in the morning कि ठीक पिक कर लो कि ये आज रात को डेट है, तो वो तो लॉजिकल है। नहीं पर मैं वीडियो तो कभी भी देख सकता हूँ ना। क्यों? लेकिन 10 घंटे मैंने odds बढ़ा दिए ना। कैसे बढ़ा दिए? सी इफ आई पुट इन द मॉर्निंग हाँ. एट 8 AM सेइंग कि देखो मेरी आज इवेंट है या डेट है या जो भी है, तो दिस इज माय ऑप्शन 1 एंड दिस इज माय ऑप्शन 2। बट इफ यू सी यू माइट बी राइट 10%, बट इफ यू सी लोग ना एनी गेट रेडी विथ मी यू पिक अप 90% ऑफ द पीपल बी लाइक एवरीवन आई एम गेटिंग वेरी लेट बट जस्ट टेल मी क्विकली। अरे पर नहीं लेट रहा तो क्यों बढ़ा रहे हो, जाओ ना, लोग खड़े नीचे। It is sometimes I feel it's so illogical and the need of putting things on social media has become wrong now. Just कि everyone just अरे बीच में क्या हुआ, I was having this एक बहुत सही स्टोरी था। एक मॉम थी, उसके बेटे को लाफा मार के बोल रही कि जा सेंटा क्लॉज फोटो खींच, उसको नहीं खींचने का सेंटा क्लॉज का फोटो। वो रो रहा है बेचारा, पर उसको मम्मी ने बोला मेरे फ्रेंड्स ने खींचा है उसके बेटे के साथ सेंटा क्लॉज का फोटो, तेरे को भी खींचना पड़ेगा। बहुत ही बड़ी चीज होती है। फोमो के लिए हम पे लोग कुछ भी बेचे जा रहे हैं। अभी कोल्ड प्ले का आधा लोग को पता ही नहीं है कोल्ड प्ले क्या चल रहा है, टिकट बेचे जा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कोल्ड प्ले क्या चल रहा है। आधे लोग जा रहे हैं, अरे बाबा मेरे फ्रेंड जा रहे थे, अरे क्यों जा रहा है भाई, तू दूसरे को टिकट दे दे, जिसको जानना हो टिकट दे दे। बट दैट्स व्हाट FOMO people, if you tap on FOMO now, you can sell anything in your life. Like if you just sell कि if you not been to Humans of Bombay, you are not living in life. People will want to come here. प्लीज बोल दो जरा। हाँ प्लीज। मेरे लिए तो था ही बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में आना, क्योंकि मेरे को लग रहा था FOMO कि मुझे, मैं ह्यूमन नहीं हूँ बॉम्बे का। ऐसे कैसे नहीं बोला? जब पहली बार अपन ने फोटो खींचा था 2020 में, आई सेलिब्रेट द आउट ऑफ इट। मेरे को इधर बुलाया ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली मेन शुड पे ऑन डेट्स? नो, एवरीवन शुड पे। तुमको अच्छा लगा खाना तुम भी भर सकते हो। इफ यू थिंक द ग्रेट, सी दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो। आई डिडंट पे फॉर माय फर्स्ट डे विद पलक, नहीं, बिकॉज़ मेरे पास पैसे ही नहीं थे। वो बेरूट वाला ऐसे मैं बिल देखा, 3000 रुपये, मतलब 3000 तो नहीं है मेरे पास, तो उस वाला मैं दे देती हूँ। देन एक बार क्या हुआ, उसका बर्थडे था एंड तभी थोड़ा बहुत पैसे था मेरे पास, इतने नहीं थे कि मैं भर दूँ जितने बिल आया था। तो मैं बोला तेरा बर्थडे, शी इज अ शेफ एंड अ बेकर ऑल्सो। मेरा एक काम करते हैं, डिनर के लेना अपन दिल्ली जाएंगे, मैं पैसा बचा के रखा है, डिनर करेंगे इंडियन एक्सेंट में दिल्ली में, मतलब वहाँ जाएंगे, बिकॉज शी वॉज अ वेरी लाइक शी वॉज फॉन्ड ऑफ दिस इंडियन एक्सेंट के, मुझे जाना एक बार जाना है, मतलब तेरे बर्थडे पे मैं लेके जाएगा। तो पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, मम्मी को झूठ बोला कि ऐसा सब है, मैं जा रहा हूँ, रूम बुक किया वहाँ पे होटल में कोई, और इंडियन एक्सेंट में गए, फुल तैयार हो। उधर भी मैं बहुत घटिया कपड़े पहन के घूमा था और वो तो मस्त चकाचक पहन के घूम रही थी। She said food with wine pairing. I said मेरे लिए तो नॉर्मल भाई जो भी खाना दे दो भाई, अपने को समझ में नहीं आता, अपने को तो शिव सागर अच्छा लगता है, सब कहाँ आ गए हम लोग। तो वहाँ पे खाना है, फिर बिल आया 20,000 रुपये का। मेरा 20,000 तो नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला आधा मैं भर देती हूँ। मेरा थैंक यू भाई। So if you just be date your friends, I feel. Yeah. सब समझ आता है। सब समझ में आता है, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। Soft launching your partner trend. लोग सॉफ्ट लॉन्च करते हैं ना, एक हाथ दिखाते हैं, एक ऐसे शोल्डर दिखाते हैं। करना चाहिए उसमें क्या है, 100% करना चाहिए। 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 1
क्यूट है, एंगेजमेंट किया बढ़ता होगा। है, मैंने भी किया है, एंगेजमेंट बढ़ता है ना। Who is it? Who's it? क्या चल रहा है? Everyone start thinking हाँ इसका कुछ चल रहा है, no? कोई तो है लाइफ में ऑफ द मार्केट। Validations. Everyone runs on validation. I want validation. Everyone try. See, that's what people don't accept. कि लोगों को सबको पसंद है, सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए, सबको पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को चाहिए भाई। 100%. करना ही चाहिए। Influencers shouldn't be actors. Why? I am also doing this. But if the particular person has talent, he or she should do it. If नहीं है तो फिर उसको ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिकॉज अंदर का आदमी को तो पता है ना कि मतलब गंदा किया है, बाहर से लोग बोले जा रहे हैं वाह क्या ऑस्कर मिला है आपको, अंदर तो पता है ना गंदा कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपको देखो अंदर कि कैसा चल रहा है। If you feel and if you have people to put money on you, nothing like it. Yeah. पर यहाँ पे तो सेट ही है। हाँ, यहाँ पे तो खुद को डालना पड़ता है पैसा। Okay, now I'm going to show you a reel and I Okay. want to capture your reaction, ठीक है? और Okay. फिर questions भी है। Okay. Oh my god. क्यों कर? I don't like it. This is too funny. Why are you laughing? I don't know. Why does they have 53,000 shares? 110,000 likes, 53. Why? तेरे को पता है वो प्रेरणा का ब्रेकअप हो गया। I hate it. So I never wanted to put the video out. Why? I never wanted to put that video. My brother is a professional footballer, so he said कि नहीं करते. Then the director who shot this, he said कि मेरे लिए डाल दे, 1 million पक्का है। मैंने क्या घटिया वीडियो है, क्या चल रहा है? And to my surprise, all the kids liked it. लोग मुझे अपने मम्मी लोग उसके फोन करके my son तो loved it. I had no idea what is happening. So वो कर रहा है, कुछ कर रहा है कोई. My son is going mad over this video. I said क्या चल रहा है? Does your nanny have inputs ever कि रील में क्या डालना है, क्या बुलवा रहे हो? No, क्या she कर understands रहे क्या बोल रहे हैं, but now first she was very like कि हाँ मैं if I tell her कि शूट करना है तो शूट करना रेडी। Now she's like 10 लोग मुझे भी देखते हैं, मेरे को ऐसा बोलने का पहले से कि क्या शूट करने का। लास्ट में नहीं बोलेंगे। हाँ लास्ट में नहीं बोलने का। अभी भी कैसा हुआ था, एक खाली छोटा लाइन था, वी वर डूइंग दिस कैंपेन, एक ही लाइन था कि ऐसा करना है। मुझे ना बोल दिया, मैं नहीं करूँगी। मतलब क्यों नहीं करेगी? बोलता है कि मेरे को एक लाइन वाला डायलॉग नहीं चाहिए, मेरे को लंबा लंबा डायलॉग चाहिए। मतलब भाई एक ही डायलॉग है। मतलब नहीं मेरे को, मैं करेगी नहीं। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, इस एटीट्यूड का क्या कर सकते हैं? बिकॉज वो लोग हम्बलनेस नहीं रहे वो लोग में। वो लोग बाय एटीट्यूड है तो है। सो बिकॉज व्हेन शी गोज डाउन इन हर सोसाइटी, सब रील्स देखते हैं, सब लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ। व्हेन शी गोज टू मंदिर, पीपल लाइक हाँ देखा मैंने तेरे को। एंड उसको ऐसे भी लगता है कि 10 लोग मुझे आए तो 5 लोग अगर उधर जाएंगे ना, तो वैसा नहीं चाहिए उसको। 15 लोग चाहिए और मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा है उसका कि मेरे को मिला मेरे को बोला विराज का फैन ऐसा बोला। वो बोला, उसने बोला कि मैं ही तो करती हूँ विराज का काम, मैं ही तो चलाती हूँ, मेरे वजह से विराज को मिल रहा है। मुझसे आते हैं। हाँ वो ऐसे तो बोलती है। तो व्हेन वी डू शोज आल्सो, गुजराती स्टैंड अप शोज, उसमें शी कम्स इन द एंड, नो शी यू नो व्हाट शी सेड वंस, शी सेड हेलो फैंस। आई सेड हाउ, प्लीज बी हम्बल। या प्लीज थोड़ा ये क्या हेलो फैंस होता है? शी जस्ट उसको मजा आता है, लोग आके बोलते हैं हाँ फोटो खींचने का, एंड शी जस्ट सिट लाइक दैट ऐसे। देन लोग आते हैं, फिर बाहर खड़ी होती है, हाँ अभी फैन है फोटो खींचने का, खींचो ऐसा कर। तो अलग लेवल पे उसका चल रहा है। एंड शी इज लिविंग हर लाइफ बिकॉज शी इज 86 एंड शी फाउंड हर यू नो अ पर्पस टू लिव नाउ। एंड शी लाइक व्हेन आई वाज कमिंग आल्सो हियर, शी सेड के जल्दी आने का, अपने को शूट करने का है, बिकॉज 2 दिन से शूट नहीं हुआ है कुछ। तो शी कहता है जल्दी भाई, कल भी लेट आया था तू, आज जल्दी आके खत्म कर, तेरे को इसको जाने का है। अरे बाप रे। Oh my god, so we cannot keep you. Last question because you must go and shoot now. Stress में आ गई. How was the conversation? But you have to tell me in Gujarati. You have to tell everybody. Okay. How was this conversation with us, with Humans of Bombay? મને આ કોન્વર્સેશન કરીને કરિશ્મા સાથે બહુ જ મજા આવી. આઈ ફીલ તમે મને એવું લાગે છે કે તમે કાંઈ મિસ આઉટ કરો છો અગર તમે અહીંયા નથી આવ્યા તો પ્લીઝ ઇફ યુ હેવ એની સ્ટોરીઝ, તમે પાસે કાંઈ પણ વાર્તાઓ હોય ને તમને જોતું હોય કે યુ વોન્ટ ટુ કોલેબરેટ, કે તમે સજોડે કામ કરી શકો with Karishma and her team, which is very good, very young team. So please watch out Humans of Bombay and talk to them. If कोई भी स्टार बन सकता है इधर से. Wow. So genuinely it was a very good experience to
do this It was. interview. I don't think I've laughed so much. And we've I've been had. doing this since like 1 hour, one and a half hours. Yeah. And I didn't realize it's 1.5 hours. Yeah. You didn't even realize podcast shuru kab hua. I just started chatting. Yeah, so it felt like a very breezy, nice one. And you asked very good questions, which I'm very surprised कि मजा आ गया मुझे. Surprised me. Because लोग नहीं पूछते इतने अच्छे questions. नहीं मैं. वो PR वाले क्वेश्चन बोले थे कि हाँ तो ऐसा कैसे हुआ था ऐसा नहीं अच्छा लगा. I'm also Gujarati. धंधो. Thank you so much, and I wish you so much love and Thank you. success. I just want to tell to people that if you are Gujarati and if you like Gujarati stand, can I promote my show here, Of please? course, Thank you. please. Please, if you're Gujarati and if you like comedy, I'm doing cleans, ekdam family gharelu comedy for Gujaratis. It's happening in NMSCC. For the first time, a Gujarati comedian will be performing 2 back-to-back sold-out shows. There two थोड़ा बहुत tickets बचा है. Please, पैसा 150-200 ticket बचा है. अपना ticket ले लो and see you. Yeah, and you support a Guju brother. हाँ, here for Viraj कर दो. Here for Viraj. I'm here for Viraj. I'm coming. Ah, yes, please come. Get your parents also. Yeah, done. Thank you so Thank much. you I've so laughed much. so much. I've had many comedians also over here, but I've not laughed this much. Thank you, so sweet of you. Thank you so much. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.